لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو رہا کر دیا گیا ہے۔ کراچی کی سٹی کورٹ نے 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور کی ہے۔ لیگی رہنما کو صبح سویرے ان کے ہوٹل کے کمرے سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد اب 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ کی عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور کر لی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل اور سندھ حکومت کے پروسیکیوٹر کی جانب سے ضمانت کی مخالفت کی گئی ہے۔ لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ کی عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور کی، جبکہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل اور سندھ حکومت کے پروسیکیوٹر کی جانب سے ضمانت کی مخالفت کی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کیا گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ کی عدالت نے رہائی کا یہ فیصلہ سنایا ہے اور 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم بھی دیا۔ ظفر سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ ظفر سومرو بتائے گا کیا منظرنامہ رہا یہاں پر؟ ظفر سومرو اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو رہا کر دیا گیا ہے، یہاں پر منظرنامہ کیا رہا؟ جی بالکل، دیکھیں آج جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ کی عدالت میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹے تک جو سماعت ہے وہ جاری رہی۔ سماعت کے دوران جو ہے نون لیگ کے وکلاء اور اس کے علاوہ کارکنان اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کارکنان بھی جو ہے عدالت میں موجود تھے اور نعرے بازی بھی کی تھی، جس کے بعد جو ہے جو بدنظمی پیدا ہوئی، جس کے بعد عدالت نے جو سماعت تھی وہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کری، جس کے بعد چیمبر میں سماعت جو ہے مزید کیس کی وہ وہاں پر سنی اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے عدالت فاضل جج جو ہے کمرے عدالت میں ایک مرتبہ پھر وہاں پر آئے اور وہ کیس کا فیصلہ سنایا اور 1 لاکھ روپے کے عوض جو ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت ہے اس کیس میں وہ منظور کر لی۔ اور جبکہ عدالت نے یہ کہا کہ جو مچلکے ہیں وہ جمع کرنے میں وقت درکار ہے، اس کے لہٰذا جو کیش رقم ہے وہ جمع کی جائے، جس کے بعد جو عدالت میں جو نون لیگ کے وکلاء اور کارکن موجود تھے ان لوگوں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے اور 1 لاکھ روپے جو ہے عدالت میں جمع کرایا، جس کے بعد عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے جو رہائی کا پروانہ تھا وہ جاری کر دیا ہے اور اب سے کچھ دیر کے پہلے ہی جہاں سے جو ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو جو رہا کیا گیا ہے وہ یہاں پر سے نون لیگ کے کارکنان ان کو نعرے بازی کر کے یہاں سے لے گئے اور آج جو ہے اس کیس میں مریم نواز سمیت 200 مزید نون لیگ کے جو بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلیک میل کرنے کی بجائے ہمت ہے تو مجھے گرفتار کرو، مریم نواز نے چیلنج دے دیا۔ کہتی ہیں قائد اعظم کے مزار پر نواز شریف زندہ باد یا مریم نواز زندہ باد کے نعرے نہیں لگے بلکہ صرف ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے گئے۔ قائد اعظم کے مزار پر ان کے فرمودات کو دہرانا کون سا گناہ ہے؟ وہ جانتی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے کون ڈرتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ دھمکیوں سے نواز شریف مروب ہو جائے گا، مریم نواز مروب ہو جائے گی یا پی ڈی ایم کے اتحاد میں کوئی فرق آئے گا یا وہ مروب ہو جائیں گے، تو اس کی خام خیالی ہے۔ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے تھرو مجھے بلیک میل کرنے سے بہتر ہے میں یہاں بیٹھی ہوں، آؤ اور مجھے اریسٹ کرو، ہمت ہے تو کرو، دنیا دیکھے تمہارا مکروہ چہرہ۔ اگر قائد اعظم کے مزار پر کسی نے قائد اعظم کا ہی بیانیہ، قائد اعظم کے ہی فرمودات دہرائے تو وہ اتنا بڑا گناہ بن گیا۔ ووٹ کو عزت دو کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے جس سے کسی کی بے حرمتی ہوتی ہو، یہ تو وہی ارشادات ہیں جو قائد اعظم نے خود فرمائے تھے۔ وہاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے نہیں لگے، وہاں مریم نواز زندہ باد کے نعرے نہیں لگے، وہاں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا۔ اور اس نعرے سے کس کو اعتراض ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ اور سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری پی ڈی ایم میں اختلافات پیدا کرنے کی سازش ہے۔ رینجرز نے ان کے کمرے کا دروازہ توڑ کر گرفتار کیا۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا عمل شرمناک ہے۔ پی ڈی ایم کے رہنما جناب کیپٹن صفدر صاحب کو یہاں ہوٹل کے کمرے سے اٹھایا گیا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ رینجرز نے ان کے کمرے پر دھاوا بولا ہے، ان کے کمرے کا دروازہ توڑا ہے۔ یہ صرف قابل مذمت ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بے خبر رکھا گیا ہے اور جب انسپکٹر جنرل پولیس نے اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا، زبردستی ان سے ایک FIR دی گئی۔
वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत करार दे दी। कहते हैं मरियम नवाज से इंतहाई माजिद ख्वाह हैं। तफ्तीश से पहले 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके गिरफ्तार किया गया। इंक्वायरी करके हकाइक सामने लाएंगे, जो जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो इंतहाई माजिद ख्वाह है, शर्मिंदा है, खासतौर पर अपनी काबिल इज्जत व इकराम बहन मरियम नवाज साहिबा के सामने, हमारे PDM के जो रहनुमा हैं सदर साहब वो सब उनके सामने, और जो हमारे TMN के कारकुन हैं पूरे पाकिस्तान के, सिंध गवर्नमेंट उनके आगे माजिद ख्वाह है। इस होटल में सिंध में ये वाक़या हुआ जिसकी हम सभी मुतवज्जिह हैं, उस पर इंक्वायरी वो करवा रहे हैं, और जिस तरह कहा गया है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी और वो आप सबके साथ शेयर। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन जलसा खेल रही है, मुल्क में खिलफशार पैदा किया जा रहा है। कायदे आजम ने यह मुल्क बनाया, उनके मकबरे को भी नहीं बख्शा गया। पाकिस्तान में जहां पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल दबाव खड़ा किया जा रहा है, वहां पाकिस्तान के अंदर भी इंतशार और खलफशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वो कायदे आजम जिसकी कुर्बानियों से ये मुल्क बना, उस कायदे आजम के मकबरे को भी नहीं बख्शा गया। वो कायदे आजम जिसने पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर को हकीकत बनाया, जालिमों ने उसके मकबरे को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान में अपोजिशन चाहती है, एक कहता है कि हम दिसंबर में जा रहे हैं, दूसरा कह रहा है हम जनवरी में जा रहे हैं। दर हकीकत इनका एजेंडा ये है कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन इमरान खान ना जीत सके, तो कान खोल के सुन लो कि इंशाअल्लाह मार्च में इमरान खान की हुकूमत तहरीके इंसाफ मजीद सीटें लेगी और सेनेट में भी उनको अक्सरियत हासिल होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन की 40 साल हुकूमत करने के बाद भी इदारों पर तनकीद समझ से बालातर है। माजी में अपने मफादात के लिए इदारों में सहूलतकार लगाए गए, इदारों को तबाह किया गया। जब इनको पता चल गया इनका कोई मुस्तकबिल नहीं तो इकट्ठे हो गए। जिन्होंने कि अपनी जाती मफादात के लिए इस मुल्क के वसाइल को लूटा, इस मुल्क के इदारों को मफलूज किया, यही वो इदारे हैं जो कि मुल्क को चलाते हैं। उन्होंने अपनी करप्शन को सहूलत देने के लिए हर उस इदारे में अपने सहूलतकार बिठाए, चाहे वो FBR हो, चाहे वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन हो, कोई भी ऐसा इदारा हो जो कि सहूलतकार बन सकता है। उन्होंने उसको अपने लोग जो कि मेरिट पे नहीं थे, वफादारी की बुनियाद पर तैनात किए। इस मुल्क में जितने भी इदारे थे उनको बतदरीज तबाह किया गया। खास तौर पे जब फैटफ के कानून में, जो कि इनका आखिरी पत्ता था, एक NRO मांगा नैब लॉस की सूरत में, जिसमें कि 38 में से 34 क्लॉजेस इन्होंने अपनी मर्जी की बनाई, जिसकी अगर तफसील आपको मिले, जो कि इंशाल्लाह हम अब उसको अवाम के सामने पेश करेंगे, उससे उन्होंने करप्शन की तशरीह बदल डाली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से स्विट्जरलैंड के सफीर की मुलाकात हुई है। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत की गई। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सगीर, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी देखिए, रावलपिंडी में आर्मी चीफ से स्विट्जरलैंड के सफीर की मुलाकात हुई है, ये कहना है ISPR का, और ये मुलाकात जो है वो GHQ में हुई है, और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। इसके अलावा मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान जो 2 तरफा ताल्लुकात हैं उनको सराहा गया है। इसके अलावा मुलाकात में पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान जो ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का अज़म भी किया गया है। सफीर ने खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया है, ये कहना है ISPR का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। PTA ने गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान में टिकटॉक सर्विस बहाल कर दी है। टिकटॉक सर्विस जो कि पाकिस्तान में बंद की गई थी, अब इसे गैर मशरूत तौर पर बहाल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि गैर अखलाकी और गैर मुनासिब कंटेंट होने की वजह से, मवाद होने की वजह से टिकटॉक को पाकिस्तान में बंद किया गया था। ताहम उसके बाद टिकटॉक इंतज़ामिया से मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद PTA ने गैर मशरूत तौर पर टिकटॉक को बहाल कर दिया है।
आटा और चीनी के बाद हुकूमत ने महंगाई का एक और बम शहरियों पर गिरा दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में 22 से 33% तक इजाफा कर दिया गया। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, आए रोज़ अशिया की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा कर दिया जाता है। जो आटा है, उसके बाद चीनी, और अब जो है वो अद्वियात की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा हो जाने के बाद अद्वियात की ख़रीदारी जो है वो शहरियों की पहुंच से बिल्कुल जो है वो बाहर निकल चुकी है। मैं आपको बताते चलूँ 253 अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में जो है वो 22 से 33% तक जो है वो इजाफ़ा किया गया है। इजाफ़ा जिन अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है इनमें दिल, इसके साथ साथ मैदा, जिगर, शुगर, टीबी और दीगर जो जान बचाने वाली अहम अद्वियात हैं वो शामिल हैं। इनके अंदर जो है वो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो जाने के बाद जो है वो शहरियों की जानिब से ये बताया गया कि जो आटा चीनी थी उसके बाद जो है वो अशिया खुरनोश की अहम अशिया के बाद जो है वो अब अद्वियात भी जो है वो उनकी पहुँच से जो है वो बिल्कुल बाहर निकल चुकी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के डी चौक पर हेल्थ वर्कर्स का धरना छठे रोज भी जारी है। हुकूमत ने लेडी हेल्थ वर्कर्स के 10 में से 9 मुतालबात मान लिए हैं। ताहम मुअत्तल शुदा 7 लेडी हेल्थ वर्कर्स को बहाल नहीं किया जाएगा। इंतजामिया के मुज़ाकरात हुए लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ और 10 में से 9 मुतालबात को मान लिया गया है। छठे रोज में ये धरना दाखिल हो चुका है। गुज़िश्ता 6 रोज से लेडी हेल्थ वर्कर्स इस्लामाबाद के डी चौक पर मौजूद हैं और अपने मुतालबात के हक में यहाँ पर वो एहतजाज कर रही हैं, धरना देकर बैठी हैं और उनकी जानिब से कहा गया था कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो वो आगे की जानिब बढ़ेंगी और पार्लियामेंट की तरफ मार्च भी करेंगी। इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात किए हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ और हुकूमत के इन मुज़ाकरात के नतीजे में 10 में से 9 मुतालबात को मान लिया गया है, जबकि एक मुतालबा नहीं माना गया। मुअत्तल शुदा 7 लेडी हेल्थ वर्कर्स को बहाल नहीं किया जाएगा, जबकि दीगर मुतालबात मान लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 6 रोज़ से लेडी हेल्थ वर्कर्स का यहाँ पर धरना जारी है। अपने मुतालबात के हक़ में वो यहाँ पर धरना दिए बैठी हैं। वली चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। वली चौधरी, बताएगा क्या मामलात तय पाए हैं अभी तक और क्या कहना है लेडी हेल्थ वर्कर्स का? जी देखें, आज जो डी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद थी, आज उनको छठा रोज़ जो है वो मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त चूँकि अब मगरिब का वक्त जो है वो गुजर चुका है और इसके बावजूद और ख़ास तौर पर जो मौसम है इस्लामाबाद का वो अब थोड़ा सा खुनकी की तरफ बढ़ रहा है और जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो इस वक्त भी डी चौक पे जो सड़क है वहाँ पर मौजूद हैं। अगर दिन भर की आप बात करें तो पहले 11 बजे की जो है वो डेडलाइन दी गई जो मुजाहिरीन हैं उनकी तरफ से कि वो अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ जो है वो मार्च करेंगी। फिर उसके बाद मज़ीद मोहलत दी गई 2 बजे तक, फिर उसके बाद 4 बजे तक मोहलत दी गई और उसके बाद जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से आपको बताते चलें कि जो हुकूमती ज़राए वो हमें ये बता रहे हैं कि जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं इनके 10 मुतालबात थे, 10 में से जो 9 मुतालबात हैं वो हुकूमत ने मानने पर जो है रजामंदी का इज़हार कर दिया और जो 10वां मुतालबा है या जो इसमें से एक मुतालबा है उसकी अगर बात करें तो वो ये है कि जो बरतरफ की गई थी लेडी हेल्थ वर्कर्स उनके हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि वो फौरी तौर पर जो है वो नहीं किया जा सकता और अगर जो ये मामला है तो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो इस मामले को कोर्ट में लेके जाएँ तो कोर्ट से जो फैसला आएगा उसको जो है वो तस्लीम कर लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो सर्विस स्ट्रक्चर हो, अलाउंसेस हो, इसके अलावा जो जॉब सेफ्टी है और जो दीगर इनके मुतालबात थे वो जो है वो तस्लीम कर लिए गए। जो कमेटी थी वो जो अली मोहम्मद खान है और जो ठीक है वली चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में एहतजाज करने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि हुकूमत ने बगैर इजाज़त एहतजाज करने वालों से निपटने के लिए नया कानून लाने का फैसला कर लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के अलावा अब भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। इरफान, तो अब एहतजाज के लिए भी पेश की इजाज़त लेना होगी? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर में जो माल रोड है इसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद माल रोड के ऊपर एहतजाजों का सिलसिला जो है वो थम न सका और इसी के ऊपर अब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि एंटी राइट एक्ट जो है उसको लाया जाए और एंटी राइट एक्ट का इतलाक जो है वो पूरे पंजाब के जो है वो तमाम रोड के ऊपर भी होगा और इस हवाले से पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इस एक्ट की तैयारी के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं और बिला इजाजत कोई भी अगर एहतजाज करेगा या रोड ब्लॉक करेगा जिससे नकद अमन का खर्चा पैदा होगा वहाँ पे मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और एहतजाज करने वाले अफराद होंगे उनके ऊपर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे ताकि ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।